اسلم تم نہ میرا گھر برباد کرواؤ گے اور کچھ نہیں ہے. ارے نہیں نیلو، میں تمہارا گھر برباد نہیں، اپنا اور تمہارا گھر آباد کرنا چاہ رہا ہوں. ارے بڑا ہی خوار کیا تمہارے بھائی نے قسم سے، ورنہ اب تک 3-4 بچے ہوتے ہیں ہمارے. سالا اب ساری زندگی جیل میں لنگڑاتا پھرے گا، باہر نہیں نکل سکتا. دیکھو اسلم، وہ سارا پلان ثاقب بھائی کا تھا. میں بالکل بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے. ثاقب کا پلان تھا؟ وہ مجھ سے محبت کی باتیں، وہ گھر بسانے کے خواب، وہ سب جو ہے وہ ثاقب کی پلاننگ تھی ہیں؟ ہاں، ثاقب بھائی تمہیں لوٹنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بس مجھے ہتھیار بنا کر استعمال کیا. اور تم ہی نہیں، تم سے پہلے بہت لوگ ہیں جن سب کو ثاقب نے لوٹا ہے. اچھا یہ بتاؤ کیسا رہا آفس؟ وقار آیا تھا؟ علیان اگر تمہیں کوئی کام کی بات کرنی ہے تو کہو. کیا اب ہم کبھی بھی نارمل بات نہیں کر سکتے؟ پہلے کا ریفرنس دینے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ پہلے ہماری ریلیشن شپ کی نوعیت کیا تھی. فیمینا میں تم سے پہلے معافی مانگ چکا ہوں، اور دیکھو روشنی نے بھی وقار کو معاف کر دیا نا. جنگل کی آخری روشنی. ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. ہر رات جنگل کے اندر ایک نیلی روشنی دکھائی دیتی تھی. لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ رہتے مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. 17 سالہ حامد نے ایک رات اس روشنی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا. وہ لالٹن لے کر جنگل میں داخل ہوا. کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانا گھر نظر آیا. گھر کی کھڑکی سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی. حامد نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. اس نے بتایا کہ وہ ہر رات چراغ اس لیے روشن کرتی ہے تاکہ جنگل میں راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو گاؤں کا راستہ مل سکے. حامد نے پوچھا، آپ اکیلے یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی. بہت سال پہلے میں بھی اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی. ایک اجنبی نے مجھے چراغ کی روشنی سے راستہ دکھایا تھا. تب سے میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن گئی. حامد بہت متاثر ہوا. اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی. سب نے مل کر جنگل کے راستے پر چھوٹے چراغ لگا دیے. اب رات کے وقت پورا راستہ روشن رہتا تھا. کچھ عرصے بعد بوڑھی عورت نے اپنی آخری رات چراغ روشن کیا اور حامد سے کہا، اب میری روشنی تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد گاؤں والوں نے ہر رات باری باری چراغ روشن کرنا شروع کر دیا. جنگل کی وہ نیلی روشنی کبھی ختم نہ ہوئی. سبق: جس نیکی سے ہمیں کبھی مدد ملی ہو اسے دوسروں تک پہنچانا ہی اس نیکی کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. ستارہ ستارہ. جنگل کی آخری روشنی. ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. ہر رات جنگل کے اندر ایک نیلی روشنی دکھائی دیتی تھی. لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ رہتے مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. 17 سالہ حامد نے ایک رات اس روشنی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا. وہ لالٹن لے کر جنگل میں داخل ہوا. کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانا گھر نظر آیا. گھر کی کھڑکی سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی. حامد نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. اس نے بتایا کہ وہ ہر رات چراغ اس لیے روشن کرتی ہے تاکہ جنگل میں راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو گاؤں کا راستہ مل سکے. حامد نے پوچھا، آپ اکیلے یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی. بہت سال پہلے میں بھی اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی. ایک اجنبی نے مجھے چراغ کی روشنی سے راستہ دکھایا تھا. تب سے میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن گئی. حامد بہت متاثر ہوا. اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی. سب نے مل کر جنگل کے راستے پر چھوٹے چراغ لگا دیے. اب رات کے وقت پورا راستہ روشن رہتا تھا. کچھ عرصے بعد بوڑھی عورت نے اپنی آخری رات چراغ روشن کیا اور حامد سے کہا، اب میری روشنی تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد گاؤں والوں نے ہر رات باری باری چراغ روشن کرنا شروع کر دیا. جنگل کی وہ نیلی روشنی کبھی ختم نہ ہوئی. سبق: جس نیکی سے ہمیں کبھی مدد ملی ہو اسے دوسروں تک پہنچانا ہی اس نیکی کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. ستارہ ستارہ. جنگل کی آخری روشنی. ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. ہر رات جنگل کے اندر ایک نیلی روشنی دکھائی دیتی تھی. لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ رہتے مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. 17 سالہ حامد نے ایک رات اس روشنی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا. وہ لالٹن لے کر جنگل میں داخل ہوا. کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانا گھر نظر آیا. گھر کی کھڑکی سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی.
हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था।
तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है।
इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी।
लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था, तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था, तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था, तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी।
اس نے بتایا کہ وہ ہر رات چراغ اس لیے روشن کرتی ہے تاکہ جنگل میں راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو گاؤں کا راستہ مل سکے۔ حامد نے پوچھا، آپ اکیلے یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، بہت سال پہلے میں بھی اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ ایک اجنبی نے مجھے چراغ کی روشنی سے راستہ دکھایا تھا، تب سے میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن گئی۔ حامد بہت متاثر ہوا۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی۔ سب نے مل کر جنگل کے راستے پر چھوٹے چراغ لگا دیے۔ اب رات کے وقت پورا راستہ روشن رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھی عورت نے اپنی آخری رات چراغ روشن کیا اور حامد سے کہا، اب میری روشنی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے ہر رات باری باری چراغ روشن کرنا شروع کر دیا۔ جنگل کی وہ نیلی روشنی کبھی ختم نہ ہوئی۔ سبق: جس نیکی سے ہمیں کبھی مدد ملی ہو اسے دوسروں تک پہنچانا ہی اس نیکی کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ستارہ جنگل کی آخری روشنی۔ ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر رات جنگل کے اندر ایک نیلی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ رہتے مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ 17 سالہ حامد نے ایک رات اس روشنی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ لالٹن لے کر جنگل میں داخل ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانا گھر نظر آیا۔ گھر کی کھڑکی سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ حامد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر رات چراغ اس لیے روشن کرتی ہے تاکہ جنگل میں راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو گاؤں کا راستہ مل سکے۔ حامد نے پوچھا، آپ اکیلے یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، بہت سال پہلے میں بھی اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ ایک اجنبی نے مجھے چراغ کی روشنی سے راستہ دکھایا تھا، تب سے میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن گئی۔ حامد بہت متاثر ہوا۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی۔ سب نے مل کر جنگل کے راستے پر چھوٹے چراغ لگا دیے۔ اب رات کے وقت پورا راستہ روشن رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھی عورت نے اپنی آخری رات چراغ روشن کیا اور حامد سے کہا، اب میری روشنی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے ہر رات باری باری چراغ روشن کرنا شروع کر دیا۔ جنگل کی وہ نیلی روشنی کبھی ختم نہ ہوئی۔ سبق: جس نیکی سے ہمیں کبھی مدد ملی ہو اسے دوسروں تک پہنچانا ہی اس نیکی کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ستارہ جنگل کی آخری روشنی۔ ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر رات جنگل کے اندر ایک نیلی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ رہتے مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ 17 سالہ حامد نے ایک رات اس روشنی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ لالٹن لے کر جنگل میں داخل ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانا گھر نظر آیا۔ گھر کی کھڑکی سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ حامد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر رات چراغ اس لیے روشن کرتی ہے تاکہ جنگل میں راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو گاؤں کا راستہ مل سکے۔ حامد نے پوچھا، آپ اکیلے یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، بہت سال پہلے میں بھی اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ ایک اجنبی نے مجھے چراغ کی روشنی سے راستہ دکھایا تھا، تب سے میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن گئی۔ حامد بہت متاثر ہوا۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی۔ سب نے مل کر جنگل کے راستے پر چھوٹے چراغ لگا دیے۔ اب رات کے وقت پورا راستہ روشن رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھی عورت نے اپنی آخری رات چراغ روشن کیا اور حامد سے کہا، اب میری روشنی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے ہر رات باری باری چراغ روشن کرنا شروع کر دیا۔ جنگل کی وہ نیلی روشنی کبھی ختم نہ ہوئی۔ سبق: جس نیکی سے ہمیں کبھی مدد ملی ہو اسے دوسروں تک پہنچانا ہی اس نیکی کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ستارہ جنگل کی آخری روشنی۔ ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر رات جنگل کے اندر ایک نیلی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ رہتے مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ 17 سالہ حامد نے ایک رات اس روشنی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ لالٹن لے کر جنگل میں داخل ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانا گھر نظر آیا۔ گھر کی کھڑکی سے وہی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ حامد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر رات چراغ اس لیے روشن کرتی ہے تاکہ جنگل میں راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو گاؤں کا راستہ مل سکے۔ حامد نے پوچھا، آپ اکیلے یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، بہت سال پہلے میں بھی اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ ایک اجنبی نے مجھے چراغ کی روشنی سے راستہ دکھایا تھا، تب سے میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن گئی۔ حامد بہت متاثر ہوا۔
अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते, मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते, मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते, मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का रास्ता मिल सके। हामिद ने पूछा, आप अकेले ये काम कब से कर रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बहुत साल पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। एक अजनबी ने मुझे चिराग की रोशनी से रास्ता दिखाया था। तब से मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन गई। हामिद बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर जंगल के रास्ते पर छोटे चिराग लगा दिए। अब रात के वक्त पूरा रास्ता रोशन रहता था। कुछ अरसे बाद बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रात चिराग रोशन किया और हामिद से कहा, अब मेरी रोशनी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद गांव वालों ने हर रात बारी बारी चिराग रोशन करना शुरू कर दिया। जंगल की वो नीली रोशनी कभी ख़त्म ना हुई।
सबक, जिस नेकी से हमें कभी मदद मिली हो उसे दूसरों तक पहुंचाना ही इस नेकी को जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। सितारा सितारा, जंगल की आखिरी रोशनी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर रात जंगल के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे देखकर खौफजदा रहते मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साला हामिद ने एक रात इस रोशनी का राज जानने का फैसला किया। वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना घर नजर आया। घर की खिड़की से वही नीली रोशनी निकल रही थी। हामिद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसने बताया कि वो हर रात चिराग इसलिए रोशन करती है ताकि जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को गांव का